This is the Snellen's chart used for to assess the visual acuity for distance, and it is used for child and illiterate person. And this one is this is E-chart. It is also used for illiterate and child, and anybody can, you can record this one with the accurate visual acuity. There is no memorization. Some people are memorize and tell one by one A, B, C, D, E. So you record the visual acuity clear cut with this E-chart, and other is the C-chart. C-chart, and one is the, and also available in alphabet English, and it also available in our regional languages, Hindi, Marathi, Bengali, Gujarati, Udiya. So today's topic is the visual acuity and near vision, color vision and ocular reflexes. What is the normal visual acuity? 6 by 6. And how to record it? How to assess the visual acuity? What is the distance between the patient and Snellen's chart? 6 meters. Distance is 6 meter. And if patient is able to read the first letter, then 6 by 60. 6 by 60. And second one is 6 by 36. then 6 by 24. then 6 by 18. and after that 6 by 12, 6 by 9 and 6 by 6. What do you mean 6 by 6? Yes, and what do you mean 6 by 60? 660 meter. C for 6 meter. मतलब नॉर्मल पर्सन को जो 60 मीटर दिखेगा और इसको 60 मीटर से देखना चाहिए, वो पेशेंट हम एग्जामिन कर रहे हैं 6 मीटर के डिस्टेंस से, है ना. If patient is able to read the third line, then what is the visual acuity? 6 by 24. And first one is the 660. And if patient is not able to read the first letter, then what to do? Distance is reduced gradually 1 meter. 1 meter. If a patient is able to read from 5 meter distance, then visual acuity is 5 by 60. Then 4 by 60. 4 by 60. Then 3 by 60, 2 by 60, and 1 by 60. And if patient is not able to read the 1 meter, then what to do? Finger counting. Finger counting. Counting finger. Counting finger. And counting finger, how to record the counting finger? No. 3 meters. No. 1 meter is divided into 3 parts. First is the, if patient is not able to read the from 160, then count finger from 3 feet distance. Patient is able to count the finger count from 3 meter distance, then it is called counting finger 3 feet. If not able, then counting finger 2 feet. And if patient is also not count the finger, then counting finger 1 feet. And if patient is not able the counting finger from 1 feet distance, then hand movement is done.
So what is how to demonstrate the hand movement? One eye closed, then moment is to and fro moment is done. अगर पेशेंट कुछ को लगेगा कि कुछ some black shadow like structure is moving in front of the eye, then hand movement is present. And after if patient is not able to hand movement, then perception of light. Angle of light. And what is perception of light? मतलब light है कि नहीं? Define it. Presence है या नहीं? Definition. I want definition. Sense कर मतलब if a patient can sense whether the light is on or off. If patient is able to perceive the light, that is called perception of light. And after that, perception of light is projection of rays. What is projection of rays? वो चार quadrants से data. Yes. Lateral, medial, inferior, superior. चार quadrant में divide करते हैं. Due to perception projection of rays से perception of जो perception of light means only perceive the light. This is we examine the central retina, and with projection of rays we examine the peripheral part of the retina, and patient is perceive the light coming from which direction. It may be temporal, nasal, upward and downwards. If present perception of light is projection of rays is present in all the four quadrants, then it is called projection of ray. PR is present in all the four quadrants, and if any quadrant it is absent, then projection of rays is absent, and it is denoted by minus sign. Negative. And if present, it is denoted by positive sign. Okay. So visual acuity, counting finger, projection of rays and perception of light. अगर प्रोजेक्शन ऑफ रेज और अगर परसेप्शन ऑफ लाइट नहीं है पेशेंट में, तब क्या बोलोगे? क्या बोलोगे इसको? ब्लाइंड आई बोलोगे? क्या बोलोगे? विजुअली नो पीएल, इट इज No perception of light present. यस. ब्लाइंड आई नहीं बोलना है, पहले ब्लाइंड आई बोलते हैं, हमको ब्लाइंड आई नहीं बोलना है. Patient is having vision no PL. No PL means there is no perception of light. But if projection of rays is present, then perception of light is present. Yes. But if there is no PL, means projection of rays is absent or present? Absent. Absent. But perception is present. मार्कर काम करता है तू? स्टेप को गलत लगाया है, रेट में रेट लगाना चाहिए. नहीं, मैं तो इसलिए उठाई थी उसको. इसको लिखा जाता है ऐसा, PL प्रेजेंट. ठीक है. अगर नो PL है तो क्या लिखोगे? नो PL.
और अगर PL is present in the PL is present, then PL is present and PR इसका मतलब क्या हुआ? Projection of rays is present in all the 4 quadrants. If one quadrant is missing, then it is written this side is the this is for right eye, huh? This is right eye and this is for left eye. So this is the temporal side, okay? And this one is the temporal side for this, and this is the nasal side. Upper, lower, upper, lower, okay? And if absent in any one quadrant, then it is denoted by negative sign. How to tell this? This one. This is for right eye. So this one is nasal side. Means PR is absent in the nasal quadrant, temporal quadrant, upper quadrant and lower quadrant. And here is absent. It means this is also nasal. This is for left eye. Nasal side absent, temporal, upper and lower are present. It is in 4 conditions. सो एक एक करके तुम लोग आओ, मैं पूछते जाऊंगी, ये बताते जाना है, ठीक है? इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? चलो तुम एक्सप्लेन करो इसको. दिस ये मतलब ना, ये सभी कंडीशन राइट आई के लिए है, ठीक है? Here is absent in the lower side of right eye. Okay. Second one. Here is absent in the nasal quadrant of the temporal quadrant of the right eye. Right ये राइट आई के लिए, सभी राइट आई के लिए. फिर nasal. तो ये कौन सा होगा? राइट आई का नेजल होगा. और ये वाला टेम्पोरल. और ये वाला और वो लोअर. और अगर हम इसको चेंज कर देते हैं राइट आई से लेफ्ट आई, तुम लोग को दिख रहा है? अगर लेफ्ट आई बोले तो अब तुम लोग का बैग थोड़ा पीछे जाओ, वो दूसरा वाले लोग को चांस मिलेगा. चलो PR तभी प्रेजेंट हो सकता है जब PL हो. हाँ, अगर PL एब्सेंट रहेगा तो PR भी एब्सेंट रहेगा, ठीक है? और अगर PL है तो PL होने के साथ PR may be present in all 4 quadrant or may be defective in any one quadrant. Okay, so in the sense of left eye, you explain this one.
projection of base is present. PL is the present. PL is present. If PL is present, then PR is also present, but it may be present in the all four quadrants or may be defective. So you explain it. What is this? নিচে মানে লোয়ার কোয়াড্রেন্টে ডিফেক্টিভ আছে আর বাকি আপার টেম্পোরাল নাসালে আছে। Okay. And second one, left eye. রাইট কোয়াড্রেন্টে আমরা এই পাশে পয়েন্টটা থেকে পাচ্ছি না কি বাকি সমস্ত কোয়াড্রেন্ট থেকে পার্সিভ করতে পারছি Now, how to explain it? This is for left eye. Means which quadrant is PR is absent? Temporal. Last one. This. For left eye. For left eye. Which quadrant? Nasal. And this one is upper. Last one. Nasal and lower. Okay. So सबको समझ में आ गया? PL, PR, काउंटिंग फिंगर. चलो अब इन लोग को एक्सप्लेन करो विजुअल एक्विटी कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और अगर पेशेंट कौन सी लाइन को पढ़ रहा है तो उसका विजुअल एक्विटी कितना होगा. तो ये ई चार्ट है। यस, ये चार्ट. इसमें अगर पहली लाइन 6 मीटर की दूरी से इसको बोलते क्या है और विजुअल स्नेलेंस चार्ट. एंड दिस इज यूज फॉर एक्टिविटी to record the distance vision, visual acuity. And what is the definition of visual acuity? White shirt. भूल गया. ये तो बेसिक है. बेसिक को नहीं जानोगे तो आगे कैसे होगा. Anybody? Definition of visual acuity? No. Definition of visual acuity? No. Ability to see or perceive the any object, to identify the object. And जब visual acuity रिकॉर्ड करोगे फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए? Always examine the right eye first and other eye is covered. Left eye is covered. Covered by first is the palm or any cardboard or occluder. And if स्नेलेंस चार्ट और पेशेंट का बीच का डिस्टेंस वो कितना होना चाहिए? 6 मीटर. तो अगर पेशेंट 6 मीटर की डिस्टेंस से फर्स्ट लेटर पढ़ पा रहा है देन व्हाट इज द विजुअल एक्विटी? 6/60. अब इसको यहां पर लिखते जाना है. ठीक है. डस्टर अच्छा नहीं है. अगर पेशेंट 6 मीटर की डिस्टेंस से फर्स्ट लेटर लिख पा रहा है, देख पा रहा है, तो उसका विजुअल एक्विटी कितना होगा? 6/60. अगर 6/60 है तो हमको PL/PR करने का जरूरत है? PL तो अंडरस्टूड है कि PL है, हम पर PR कर सकते हैं क्योंकि अगर रेटिनल डिटेचमेंट का पेशेंट है तो आपको उसमें PR डिफेक्टिव मिल सकता है 660 या काउंटिंग फिंगर 3 फीट या 2 फीट होने के बाद भी. ठीक है. इफ पेशेंट इज एबल टू रीड द सेकेंड लेटर देन व्हाट इज द विजुअल एक्विटी? 6/36. एंड थर्ड इसमें क्या है? टोटल कितने रो होते हैं? 7 रोज. फर्स्ट में 660, देन 6/24, then 6/18, 6/12, and 6/9, 6/6. This is the normal vision. If patient is able to read the last 7th line or last lowermost line, then
his visual acuity is 6/6 and this is the normal visual acuity. But first we examine the right eye, left eye is covered, then same thing is repeat with the left eye. In that time right eye is covered by cardboard or occluder or palm. मैं ऑक्लूडर लाना भूल गई. फिर देखो पेशेंट का विजन 660 है, तो डायग्नोसिस क्या हो सकता है? अगर 660 है विजन तब क्या हो सकता है? 660 है मीन्स पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम रिफ्रैक्टिव एरर. पर अगर 660 है तो रिफ्रैक्टिव एरर ना होते हुए उसको और भी कुछ हो सकता है, अफेकिया हो सकता है. यस, अफेकिया कौन कंडीशन में हो सकता है? जब पेशेंट बहुत हाई मायोप हो और लेंस एक्सट्रैक्शन कर दिया गया है, तो विदाउट इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन उसका विजुअल एक्विटी हो जाएगा 6/60. पर अगर हाइपरमेट्रोप है और आपने लेंस एक्सट्रैक्शन कर दिया है, इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट नहीं किया है, तो उसका विजन 6/60 नहीं हो सकता. अफेकिया में नॉर्मली कितना होता है? काउंटिंग फिंगर 2 फीट 3 फीट. ओके, फिर अदर आई का भी कर लिया. फिर अगर पेशेंट 660 विजन है, ठीक है बैठ जाओ. अगर 660 विजन है और पिन होल डाल रहे हो, पिन होल क्या होता है? दिस इज द पिन होल. एक ऑक्लूडर होता है, उसमें क्या होता है? इसमें सेंटर में होल है, उसमें होल नहीं रहता, दैट इज टोटली ओपेक. और पिन होल से हम क्या असेस करते हैं? मतलब पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम रिफ्रैक्टिव एरर और नॉट. अगर 6/60 विजन है उसका, पिन होल से विजन रिकॉर्ड करोगे तो उसका विजन आ रहा है 6/6. इसका मतलब क्या हुआ? पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम रिफ्रैक्टिव एरर एंड हिज विजन इज इम्प्रूव्ड विथ ग्लासेस एंड पेशेंट इज मायोपिक. और अगर पिन होल दे रहे हो, पिन होल से विजुअल एक्विटी इंप्रूव नहीं हो रहा है, देन क्या हो सकता है? नेक्स्ट क्या हो सकता है? पिन होल से इंप्रूव नहीं हो रहा है, तब क्या होगा विजन? देखो रेटिना तो बात का है. फर्स्ट तुम वो बोलोगे, अगर मीडिया जानते हो? मीडिया क्या होता है? आकुलर मीडिया क्या क्या होता है? आकुलर मीडिया और आकुलर सरफेसेस, रिफ्रैक्टिव सरफेसेस होते हैं ना, कौन कौन सी है? एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया, anterior surface of lens and posterior surface of lens. This is ocular surfaces, refractive surfaces. And ocular media is the aqueous humor and vitreous humor. तो ये जो तुम्हारा ocular जो surfaces है, refractive surfaces, जहां से light rays refract होती है, अगर उसमें कोई anomaly होगा, disturbance होगा, then vision is not improved with painful. तो first is the cornea, maybe corneal ulcer or corneal opacity. First thing. Then second one is the, if there is opacity in the lens, it may be nuclear cataract or cortical cataract. पर पेशेंट को कैटरेक्ट है, फिर भी पिन होल से विजन इंप्रूव हो रहा है, और दूसरा पेशेंट है उसको भी कैटरेक्ट है, पर उसका विजन पिन होल से इंप्रूव नहीं हो रहा है, तब दोनों को कैसे इंटरप्रेट करोगे? सीधा विट्रस ह्यूमर में पहुंच जाओगे. हाँ, पहले तो पास का देखो ना, दूर में क्यों जाना है? तो उसके लिए क्या होगा?
अगर सेंट्रल न्यूक्लियर कैटरेक्ट है, न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस है, या सेंट्रल कॉर्नियल ओपेसिटी है, उस कंडीशन में पिन होल से विजन इंप्रूव नहीं होगा। पर अगर ओपेसिटी पेरिफेरी में है अदर देन द प्यूपिलरी एरिया, ठीक है, और कार्टिकल कैटरेक्ट है, कार्टिकल कैटरेक्ट मींस intumescent stage of the cataract, in that case some fibers are opaque and some fibers are clear, so in that case visual acuity is also improved। इसलिए हम बोलते हैं ना immature cataract and mature cataract, या कार्टिकल कैटरेक्ट भी अगर मैच्योर स्टेज में आएगा पेशेंट तो उस कंडीशन में विजन इंप्रूव नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस विजन का यहां तक समझ में आ गया, इंप्रूव हो रहा है नहीं इंप्रूव हो रहा है। फिर ये भी हो सकता है कि इमेट्रोपिक मतलब क्या होता है, इमेट्रोपिक मीन्स नॉर्मल विजन, ठीक है। ये भी हो सकता है कि पेशेंट का वन आई में 6-6 विजन हो और अदर आई में 6-6, तो उसका क्या करोगे, मतलब उसका विजुअल, इसीलिए हम क्या है बोथ आई का विजुअल एक्विटी एक साथ नहीं करते, इंडिविजुअल करते हैं, जिससे हम दोनों आई को अच्छे से असेस कर लें, ठीक है। तो अगर तो उस पेशेंट को वो ज्यादा चश्मे के लिए आएगा नहीं तुम्हारे पास, क्यों क्यों नहीं आएगा, हाँ, वो एक आई को डिस्टेंस विजन के लिए इस्तेमाल करेगा और अदर आई को नियर विजन के लिए। पर अगर पेशेंट का विजन 6-6 है, एज 40 इयर्स है, पर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे नियर विजन में डिफिकल्टीज होता है, आई एम नॉट एबल टू रीड स्मॉल लेटर्स, देन व्हाट इज द डायग्नोसिस, प्रेसबायोपिया। और अगर पेशेंट है स्यूडोफेकिक आई है, स्यूडोफेकिक आई है, स्यूडोफेकिक में समझते हो तो after cataract extraction intraocular lens is implanted in that patient, that is called pseudophakia। if lens is not implant then it is aphakic condition, ठीक है। तो अगर pseudophakic पेशेंट है विथ ग्लासेस, मतलब विदाउट ग्लासेस, उसका विजन है 6-6, पर उसको नियर विजन में डिफिकल्टीज हो रही, क्यों, एकोमोडेशन का क्या हुआ, तुम बताओ, तुमको पढ़ाई आज तुम आई थी क्लिनिक में, तुमको बताई थी क्लास में, बताई हो क्लास में, बोलो बोलो। यस, मतलब जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस विजन को देख रहे हैं, ठीक है, पर नियर विजन को करने तो इसमें एकोमोडेशन यूज करते हैं ना। तो अगर हम लेंस को निकाल दिए, लेंस इज द इलास्टिक स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू focus the image, lens is contract and relax, but in case of pseudophakia this function is not available, so pseudophakic patient is always require presbyopic correction, there is no accommodation। और 40 इयर्स का एज है तो उसमें आप 1.51 दोगे, फिर ये जो तुम्हारा प्रेसबायोपिक करेक्शन है अप टू +3 डायोप्टर तक दे सकते हो, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग टू 40 इयर्स, 50 इयर्स एंड 60 इयर्स, 60 इयर्स के बाद जितने भी पेशेंट को दोगे प्रेसबायोपिक करेक्शन, दैट इज द +3 डायोप्टर। ये डिस्टेंस विजन सभी को समझ में आ गया, स्नेलेंस से कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या क्या है।
ये देखो, ये भी इस डेलेंस का छोटा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है. दिस इज आल्सो यूज फॉर नियर विजन. नियर विजन इज recorded by chart's name is Jaeger's chart, and it was invented by the scientist. ठीक है. सो ये बड़ा साइज का हम डिस्टेंस विजन के लिए करते हैं, और उसी का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है. अगर पेशेंट इलिटरेट है तो उसके लिए फिगर वाला करेंगे, जो तुमको फिगर ये दिखाया, ये डॉट डॉट वाला रहेगा, और ये सी चार्ट है. ठीक है. और जो पढ़ा लिखा है तो उसके लिए अलग से अलग अलग लैंग्वेजेस में आता है ये. ठीक है. ये बंगाली, असमीज, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, है, तमिल, मराठी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश. ठीक है. तो जो जिस स्टेट का पेशेंट है, जो उसको जो लैंग्वेज में बोलना आता है, अकॉर्डिंग टू हम इसमें रखते हैं. इसलिए इसमें हमने सभी लैंग्वेज को कंक्लूड किया गया है. ठीक है. अब इसका क्या है, नियर विजन कैसे रिकॉर्ड करते हैं? एनीबॉडी डिमॉन्स्ट्रेट? Patient should hold this 25 seconds. फिर Retractable line. तो इसमें भी अलग अलग आई का इंडिविजुअल करोगे कि एक साथ करोगे? अलग अलग. अलग अलग करोगे. इसमें भी राइट आई का पहले एक बार कर लोगे, फिर उसके बाद लेफ्ट आई, देन बोथ आई का एक साथ करोगे. बाइनोकुलरिटी. अगर विजुअल एक्विटी यूनिओकुलर टेस्ट कर रहे हो तो उसमें कम है, तो बाइनोकुलरिटी में विजन क्या है उसका इम्प्रूव हो जाएगा. ठीक है. तो नियर विजन इज रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ जेगर्स चार्ट. और कलर विजन चार्ट, उसको क्या बोलते हैं? इशिहारा. उस कलर विजन किसमें देखते हैं? प्रोटोनोपिया, डिटरोपिया, ये क्या होता है? इसमें कलर विजन रिकॉर्ड करने के लिए क्या होता है, जो इशिहारा जो चार्ट होता है उसमें 38 चार्ट्स होते हैं. ठीक है. उसमें हर किसी में नंबर लिखा हुआ रहता है, अलग अलग डॉट डॉट स्ट्रक्चर में. फिगर इसमें था शायद मिस. कोई कुछ बुक लेके आया हो? हाँ, देख. ये किसकी बुक है? एकदम नई नवेली है? एकदम नई नवेली बुक, मतलब इसको पढ़ा ही नहीं है लग रहा है. इसमें कहाँ पर दिया है कलर विजन? ये कौन सी बुक है? ओह, समर मसाज. पेज नंबर? हाँ यार, इस बुक में तो दिख ही नहीं रहा. ओह, ये देखो,
इस तरह का कलर प्लेट्स आता है, ठीक है, ये कलर विजन के लिए। तो इसमें भी क्या होता है, इस कलर विजन में इसमें 5 या 6 टाइप्स का प्लेट होता है। फर्स्ट प्लेट को बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्लेट। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्लेट जो होता है, कलर विजन हम क्यों करते हैं, व्हाट इज द इंडिकेशंस, कलर विजन क्यों करते हैं? पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनी कलर विजन डिफेक्ट और नॉट, है ना। तो जैसे ट्रक ड्राइवर है, कार ड्राइवर है, तुम्हारा पायलट है, मेडिकल स्टूडेंट है, जिन लोग को एनालिसिस करना है, हिस्टोपैथो एग्जामिनेशन, अगर कलर ब्लाइंड रहेगा तो उसको तो समझ में ही नहीं आएगा ना सेल काउंट डिफरेंशिएट करने के लिए। पैथोलॉजिस्ट को तो चाहिए ना कलर ब्लाइंड ना हो। ट्रैफिक पुलिस है, पायलट है, तो इन सब के लिए कलर विजन अगर डिफेक्ट है, या आर्मी में है, फोर्स में है, नेवी में है, तो उन लोग सिग्नल कैसे देखेगा वो, समझ रहे। तो उनके लिए ये मैंडेटरी रहता है कि कलर विजन शुड बी नॉर्मल, है ना। तो फर्स्ट प्लेट होता है जिसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्लेट। तो वो 12 उसमें लिखा रहता है 112, ये 12 नंबर वाला, ठीक है। तो ये सभी को दिखेगा, जो कलर ब्लाइंड है उसको भी दिखेगा, जो कलर ब्लाइंड नहीं है उसको भी दिखेगा, सभी को दिखेगा। फिर दूसरे तरह का प्लेट होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव प्लेट। तो ट्रांसफॉर्मेटिव प्लेट में क्या रहता है, जैसे उसमें 5 लिखा है तो पेशेंट को दिखेगा 3, किसी में 7 लिखा है तो उसको दिखेगा 2 नंबर, ठीक है। और एक होता है वैनिशिंग प्लेट। वैनिशिंग प्लेट मतलब उसमें लिखा हुआ है पर पेशेंट को उसमें कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। और एक होता है डायग्नोस्टिक प्लेट। तो डायग्नोस्टिक प्लेट में क्या रहता है, उसमें डबल नंबर का डिजिट लिखा रहेगा, ठीक है, 2 डिजिट लिखा रहेगा, जैसे 27 लिखा हुआ है ना, 54 लिखा हुआ है, पर वो पेशेंट को दिख रहा है 21 दिख रहा है, या वो बोल रहा है उसका वन साइड का लेटर, लेफ्ट साइड का जो रेड कलर में लिखा है वो अच्छे से दिख रहा है, और जो ग्रीन कलर में वो नहीं दिख रहा है, मतलब ही इज सफरिंग फ्रॉम प्रोटेनोपिया, ठीक है। और जो ड्यूटेरोपिया जो है डबल रेड एंड ब्लू, तो उसको दोनों ही नहीं दिखेगा, ठीक है। और कुछ को दिखेगा कि वन साइड का लेटर हाफ दिख रहा है और अदर फेंट दिख रहा है, मीन्स दिस इज पार्शियली देयर इज कलर विजन डिफेक्ट, ओके। और एक होता है ट्रेसिंग प्लेट होता है, ट्रेसिंग प्लेट। तो ट्रेसिंग प्लेट उसके लिए कि जो पढ़ा लिखा है वो तो बोलेगा दिस इज नंबर 17, नंबर 21, नंबर 18 कार्ड को देखकर, पर जो पढ़ा लिखा नहीं है, इलिटरेट है या बच्चा है, तो उसको देखने की उनको बोलते हैं ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, ये जहां जहां लाइन गया है उसको ट्रेस करके बताना है इस तरह से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रेसिंग प्लेट। और कुछ प्लेट्स ऐसे होते हैं जिसमें नंबर लिखा हुआ रहेगा पर पेशेंट को उसमें कुछ भी नंबर नहीं दिखता है, वो बोलेगा कि नहीं इसमें लिखा ही नहीं है, वो कोई भी नंबर को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा है। एक में क्या रहेगा, लिखा कुछ है, दिखेगा कुछ, 5 लिखा है वो उसको 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। 7 लिखा है वो उसको 1 दिख रहा है, और कुछ को जो नंबर लिखा हुआ है वो कुछ भी नहीं लिखा है, ब्लैंक है बोलेगा। और कुछ प्लेट्स ऐसे हैं जो हम लोग को नहीं दिखेगा, पर कलर ब्लाइंड को वो डिफरेंट नंबर में दिखेगा उसको, ठीक है। तो ये सब प्लेट्स को बस उसको दिखा के ऑब्जर्व करना है, और उसके अकॉर्डिंग टू हम ये कलर विजन टेस्ट करते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कलर विजन और नॉट, हो गया। तो ये कलर विजन हो गया, नियर विजन हो गया। तो नियर विजन का भी वैसे ही रिकॉर्ड करते हैं जैसे इसमें है n/36, n/18, 12, 10, 8 और 6। अगर ये लास्ट का स्मॉलेस्ट लेटर पढ़ पा रहा है मतलब हिज नियर विजन इज n/6। अगर इस लेटर को नहीं पढ़ पा रहा है, यहां तक पढ़ पा रहा है n/12, means patient is having difficulties in near vision, and near vision is corrected by which glasses? Convex. अब ये तो रिफ्रैक्टिव एरर हो गया, इसका नाम सुना हुआ है, व्हाट इज दिस?
स्टेनोपिक स्लिट, इसका क्या यूज होता है? यूज क्या है स्टेनोपिक स्लिट का? इसमें बीच में होल है, परपेंडिकुलर लाइन, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर, that's why it is called stenopic slit. What is the use? नहीं, पेशेंट को एस्टिग्मेटिज्म है कि नहीं और एक्सिस देखने के लिए, जैसे सिलेंडर लेंस क्यों देते हैं हम एस्टिग्मेटिज्म के लिए? तो नॉर्मली किस तरह का लेंस होता है? फर्स्ट इज द स्फेरिकल, स्फेरिकल में भी कॉन्वेक्स स्फेरिकल एंड कॉन्केव स्फेरिकल. कॉन्वेक्स स्फेरिकल इज गिवन फॉर hypermetropic patient and concave spherical is simple myopia. And सिलेंडर अगर पेशेंट मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है, तो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया होते हुए भी उसको एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है. तो एस्टिग्मेटिज्म है वो देखने के लिए क्या करोगे? जैसे ट्रायल फ्रेम होता है ना, ट्रायल फ्रेम में उसमें 3 कंपार्टमेंट्स होता है. लास्ट में ऑक्लूडर रखते हैं, बीच में क्या रखते हैं? स्फेरिकल, और सामने वाले में क्या रखते हैं? सिलेंडर. ठीक है, तो सिलेंडर को हम क्या है पर्टिकुलर, अगर सिलेंडर पावर है 180 डिग्री में, तो 180 डिग्री में सिलेंडर है तो उसमें पावर कहां पर रहेगा? उसके परपेंडिकुलर रहेगा. ठीक है, और सिलेंडर में क्या होता है? पावर सेंटर में पावर ज्यादा रहेगा, इमेज मैग्निफिकेशन होगा, बस जैसे जैसे पेरिफेरी में जाओगे तो मिमिफिकेशन होगा, मतलब इमेज छोटा होता जाएगा. ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट इसमें भी प्लस सिलेंडर और माइनस सिलेंडर. तो माइनस सिलेंडर में क्या होगा? स्मॉल इमेज छोटा रहेगा, पर उसमें माइनस सिलेंडर में सेंटर में इमेज छोटा दिखेगा, पर ग्रेजुअली तुम एक्सिस की तरफ जाओगे पेरिफेरी में, तब इमेज का साइज बढ़ता जाएगा. ठीक है, अब स्टेनोपिक स्लिट है, पेशेंट को पिन होल से देख लिया, विजन इंप्रूव है. अब उसको अगर एस्टिग्मेटिज्म भी है तो इसको पहले 180 डिग्री में करोगे, फिर ग्रेजुअली इसको तुम रोटेट करोगे, तो जिस डायरेक्शंस में, जिस एंगल पे उसका विजन इंप्रूव हो रहा है, मतलब उस एक्सिस में उसको एस्टिग्मेटिज्म है, तो करेक्शन आपको उसी एक्सिस में देना होगा. तो ये एक्सिस देखने के लिए यूज किया जाता है. आजकल इसका यूज नहीं होता है ज्यादा. आजकल तो हम लोग डायरेक्ट ऑटोरेफ आ गया है ना, तो ऑटोरेफ से ही सब कर लेते हैं कि उसको स्फेरिकल देना है, सिलेंडर देना है, फिर कौन सी एक्सिस में देना है, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस करके उसको ग्लास प्रिस्क्राइब कर. पर पहले ये करते थे. और एक क्रॉस सिलेंडर आता है, क्रॉस सिलेंडर मालूम है? लंबा हैंडल रहता था, एक बुक में देखना उसका फिगर बना होगा, क्रॉस सिलेंडर. तो उससे भी एस्टिग्मेटिज्म को टेस्ट किया जाता है. ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म हो गया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, कलर विजन भी बता दिया, नियर विजन भी बता दिया, PLPR ये भी बता दिया. अब क्या बच गया? हाँ, ब्लिंक रिफ्लेक्स. व्हाट इज ब्लिंक रिफ्लेक्स? ब्लिंक मतलब क्या समझते हो? क्या 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 बोलो? ब्लिंक का मीनिंग तो समझते हो? क्या होता है ब्लिंक? मतलब पलकें झपकाना. ठीक है, तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं? ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स क्यों करते हैं? ब्लिंक, मेनली ब्लिंक रिफ्लेक्स इज टू स्प्रेड द टीयर फिल्म. ठीक है, नॉर्मली अगर तो पूरे टाइम ऐसे देखते रहोगे तो कॉर्निया तो ड्राई हो जाएगा ना, तो तुमको ब्लरिंग ऑफ विजन होगा. इसलिए ब्लिंक रिफ्लेक्स करके टीयर को वो कॉर्निया के सरफेस में स्मूथली ब्लिंक करेगा. और ब्लिंक रिफ्लेक्स क्यों करते हैं? अगर कुछ फॉरेन बॉडी चला गया, कोई इंसेक्ट उड़ के आ गया, कुछ अपने तरफ धूल आ रहा है, तब हम उसको टू प्रोटेक्ट द आई, तब ब्लिंक रिफ्लेक्स करते हैं. ठीक है, और ये दोनों हो सकता है.
वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी जैसे होगा तो हम तुमको बोलेंगे तुम अपने पल के झिप ब्लिंक करो करके, तुम बार बार क्लोज करोगे ओपन करोगे आई, तो दिस इज द वॉलंटरी। पर हम वॉलंटरी अगर कुछ काम कर रहे हैं तो हम विलफुली तो ब्लिंक रिफ्लेक्स नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली भी होता है। अगर कुछ फॉरेन बॉडी आ गया तो हम करते थोड़ी, वो तो रिफ्लेक्सली होता है, तो दैट इज द ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स। ठीक है। और जैसे कॉर्निया में अगर कॉर्निया इज द एवास्कुलर स्ट्रक्चर और वास्कुलर स्ट्रक्चर, वास्कुलर स्ट्रक्चर, तो कॉर्निया सेंसेशन टेस्ट करते हैं, कॉर्नियल सेंसेशन टेस्ट, जैसे लेप्रो कॉर्निया इज एवास्कुलर स्ट्रक्चर ना, मैं क्या बोली, ओ सॉरी गलती से निकल गया। हाँ, एवास्कुलर स्ट्रक्चर है एंड कॉर्निया इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है। अगर लेप्रोसी है या कुछ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है तब उसमें सेंसेशन लॉस हो जाता है। और कॉर्नियल सेंसेशन टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, कॉटन विग, उसको पतला सा एकदम थ्रेड लाइक मोड़ लेते हैं, और उस समय आपको एनेस्थेटाइज नहीं करना है आई को। अगर एनेस्थेटाइज कर दोगे तो रिफ्लेक्स तुमको मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि कॉर्निया इस वैसे ही एनेस्थेटाइज हो जाएगा जाइलोकेन से। तब क्या करेंगे, विदाउट एनेस्थेटाइज, अगर कोई किसी ने टेस्ट करने के लिए कुछ टेस्ट करने के लिए मान लो तुमने जाइलोकेन डाला है, तो तुम उस समय नहीं करोगे, आफ्टर 4-5 आवर्स बाद करोगे, जब उसका एनेस्थेटिक ड्रग का इफेक्ट चला जाएगा तब। ठीक है। तो कॉटन विक से करोगे, जैसे ही तुम कॉर्निया को टच करोगे तो तुरंत वो आई क्लोज करेगा, तो दैट इज कॉर्नियल सेंसेशन इज प्रेजेंट। अब इसको भी कॉर्नियल सेंसेशन को एक ही जगह नहीं करेंगे, पूरा सर्कल को आप 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करोगे, तो फिर इसमें भी जैसे इसका किया वैसे, तो इसमें 4 क्वाड्रेंट ऐसा नहीं रहेगा, इस तरह से ऐसे नहीं करेंगे, इसको क्रॉस में करेंगे लाइक दिस। तो अपर नेजल, लोअर नेजल एंड अपर टेम्पोरल एंड लोअर टेम्पोरल। ठीक है। तो इस तरह से, तो कौन से पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में आपका कॉर्नियल सेंसेशन लॉस है ये आपको पता लग जाएगा। तो लेप्रोसी में होगा, या फेशियल पाल्सी है, या फिर ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया होगा न्यूरोलॉजिकल, तो उस कंडीशन में तुमको ये कॉर्नियल रिफ्लेक्स नहीं मिलेगा। ठीक है। अब समराइज करना है, कौन समराइज करेगा, इधर पीछे से कोई आओ, पीछे में जो सबसे पीछे में बैठा है उसको बुलाओ। हाँ, क्या हाँ, तुम यहाँ खड़े हो जाओ। मैंने अभी पढ़ाया विजुअल एक्विटी, पढ़ाया हाउ टू रिकॉर्ड द विजुअल एक्विटी, है ना, डिस्टेंस विजन, नियर विजन, कलर विजन, है ना, तीनों ही दिखाया। फिर बताया रिफ्रैक्टिव एरर क्या होता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म है। तो इस स्नेलेस चार्ट में तुम एग्जामिन का, जैसे मैंने बताया, वो इन लोग को एक बार एक्सप्लेन करो कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं और हम कैसे उसको डिनोट करेंगे वहां पर। हाँ, हल्ला नहीं करो, हाँ सुनो। नहीं, उसके पहले तो एक चीज तो भूल गए तुमने, पेशेंट को 6 मीटर से तो बोलोगे, पर एक और कंडीशन है, वो क्या है, ऑलवेज एग्जामिन द राइट आई फर्स्ट एंड अदर आई इज कवर विथ अ पाम और ऑक्लूडर और एनी हार्ड ऑब्जेक्ट, है ना। और अगर तुम विजुअल एक्विटी कर रहे हो तो अगर उसका एक आई में 6-6 है, एक में 6-24 है, तो भी तो वो अगर अदर आई को कवर नहीं करोगे तो वो तो वहां से 6-6 पढ़ लेगा, तो तुम्हारा विजुअल एक्विटी जो रिकॉर्ड करोगे वो तो सही नहीं होगा। फिर तो उसके बाद अगर वो सही आता है, देख पाता है, तो नहीं, कैसे सही आता है वही तो जानना है। बोलना है कि वो देख पा रहा है या नहीं। हाँ, फिर अगर फर्स्ट लेटर को पढ़ लिया फिर क्या करोगे, तो नीचे वाला, हाँ तो बोलते जाओ ना। मतलब नीचे वाला देख पा रहा है या नहीं। अगर ये भी उसको मतलब
हम्म फिर उसके बाद ये वाला ऐसे करके लास्ट में जाएंगे हम्म अगर लास्ट में उसको मिल जाता है तो उसका नॉर्मल तो उसको क्या बोलेंगे, उसका विजुअल इक्विटी 6/6 6/6। फिर उसका विजुअल इक्विटी 6/6 है, तो देन पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनी रिफ्रैक्टिव एरर और नॉट? नो। और अगर ग्लास है और विदाउट ग्लासेस है तो हम पहले कैसे एग्जामिन करेंगे? ये तो विदाउट ग्लास में हो गया पहले विदाउट ग्लास एग्जामिन करेंगे, फिर उसके साथ विथ ग्लास, और विथ ग्लास करोगे तब भी सेम प्रोसीजर करोगे। जब राइट आई को एग्जामिन करोगे तो लेफ्ट आई को कवर कर दोगे, और लेफ्ट आई को कवर करोगे एग्जामिन करोगे तो राइट आई को कवर करोगे, पर पहले विदाउट ग्लासेस फिर विथ ग्लासेस। अगर विथ ग्लासेस उसका विजन आ रहा है 6/18 बोथ आई, तब क्या करोगे? विद ग्लासेस हम्म उसमें जो उसका स्पेक्टेकल का जो पावर है वो भी उसको क्या बोलोगे पेशेंट्स को? विजन 6/18 विद नहीं तो उसका क्या करोगे, पेशेंट को क्या बोलोगे? 6/18 तो है, ये कर दिया, पेशेंट ने आपके पास आया, पर उसको एडवाइस क्या दोगे? हाँ, उसको हिस्ट्री लोगे, कब तक वो कब चश्मा का जांच कराया और कब से पहन रहा है। और अगर 6 विथ ग्लासेस 6/18 विजन है, तब उसका पिन होल से विजन इंप्रूव करोगे। और अगर पिन होल से विजन ले रहे हो, अगर इंप्रूव हो रहा है तब तो उसको रिफ्रैक्टिव करेक्शन दोगे, ग्लासेस चेंज कर दोगे तो विजन 6/6 हो जाएगा, ठीक है। पर अगर विथ पिन होल अगर विजन नहीं इंप्रूव हो रहा है तब क्या करोगे? 6/18 है, विथ ग्लास भी 6/18 है और विदाउट ग्लासेस 6/36 है, ठीक है। पिन होल से उसका विजन इंप्रूव नहीं हो रहा है, 6/18 ही हो रहा है। उसको सामने की तरफ नहीं बढ़ाओगे तब भी कोई नहीं होगा ना। 6/18 है तो बढ़ाओगे क्यों? 6/18 है तो डिस्टेंस रिड्यूस करने का जरूरत ही नहीं है। डिस्टेंस रिड्यूस कब करते हैं? अगर पेशेंट 660 विजन है या 660 विजन नहीं है, 660 विजन से ज्यादा नहीं है, तब हम डिस्टेंस रिड्यूस करेंगे। पर अगर 6/18 है और तुम रिड्यूस करके बोलोगे कि 5/18 या 4/18, तो ये तो तुम्हारा गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। तब उस कंडीशन में क्या करोगे? उसका लेंस का जो सेंट्रल पोर्शन है उसको चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करोगे? उसका फंडस एग्जामिनेशन करोगे। तो फंडस एग्जामिनेशन भी 2 तरह का होता है, क्या क्या क्लास ली हूं मैं? डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी एंड इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, याद आ रहा है? तो इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी और डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, इससे हम क्या करेंगे? फंडस। फंडस में हम क्या क्या देखते हैं? फंडस देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा? विट्रियस दिखेगा, रेटिना दिखेगा, और फोविया, फोवियोला, ठीक है। मैक्यूला का पार्ट होता है ना, ये मैक्यूला के कितने पार्ट होते हैं? मैक्यूला के अंदर फोविया होता है ना, और फोविया का जो एकदम सेंटर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड फोवियोला, ठीक है। और ऑप्टिक डिस्क देखोगे, ऑप्टिक डिस्क क्या होता है? ऑप्टिक नर्व होता है। तो वहां से जो वेसल्स वगैरह तुम्हारा रेटिनल वेन, रेटिनल आर्टरी, तो अगर उसमें कहीं पर ब्लॉकेज है, कहीं पर लीकेज है, तो वो तुमको फंडस में दिखेगा, ठीक है। तो जो तुमको रेड ग्लो जो दिखता है वो किसका है? ग्लो दिखता है, रेटिना इज द ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। वो जो ग्लो दिखता है और वेसल्स दिखता है रेटिनल, वो कोराइड की वजह से दिखता है। कोराइड इज द वस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। आई बॉल के कितने कोट होते हैं? ठीक है, आप बैठ जाओ। अब नेक्स्ट किसको बुलाऊं?
इधर से ही, इधर से ही कौन सा नया चेहरा दिख रहा है? हाँ आप आ जाओ। सामने सामने। हाँ, नियर विजन कैसे रिकॉर्ड करते? जगर्स चार्ट से। तो ये जगर्स चार्ट में पेशेंट को कितने मीटर के डिस्टेंस से पढ़ने को बोलोगे और कैसे बोलोगे? 24 कहाँ से आ गया? 25, मैंने तो 24 अभी तक बोला भी नहीं। 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, या फिर ये जो 1 फीट जो तुम्हारा आ रहा है, ठीक है। उससे क्या करोगे, पहले टॉप बड़ा जो लार्ज साइज का लेटर है उसको पढ़ाते जाओगे, फिर वो धीरे, हाँ, लार्ज से स्मॉल की ओर जाएगा। अगर उसमें देखो, बताओ कौन सी लाइन को पढ़ेगा तो कितना विजुअल एक्विटी होगा उसका नियर का? अगर टॉप वाला पढ़ सकता है तो n/36 होगा, तो जितना नीचे जाएगा तो बोलते जाओ ना, उसको बोलो n/36 है, जिससे सब लोग को सुनाई दे। ओके n/12, n/10, n/8, n/6 लास्ट आएगा। ओके, तो n/6 नॉर्मल है। n/6 मीन्स नॉर्मल विजन, और अगर n/8 आ रहा है, n/12 है, तब उसको क्या करोगे? नियर करेक्शन दोगे, नियर करेक्शन, ठीक है। तो ये तुम्हारा नियर कलर विजन हो गया, सब लोग का कलर विजन हो गया, नियर विजन और डिस्टेंस विजन, है ना। अब हाँ, अब ये तुम एक पॉइंट और बताओ, स्फेरिकल लेंसेस है ना। स्फेरिकल लेंसेस में कॉन्वेक्स है और कॉन्केव। तो कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक है, बैठ जाओ आप। हाँ, कॉन्वेक्स तो इमेज जिस दिक लेंस को शिफ्ट करेगा उस दिक ही जाएगा, और कॉन्केव हुआ तो डिफरेंट ऑपोजिट में शिफ्ट होगा। कॉन्केव। तो देखो, अगर इस स्फेरिकल प्लस लेंसेस है तो उसको हम पकड़ेंगे इस तरह से, है, होल्डिंग लाइक दिस, है ना। और इसमें भी वन आई को क्लोज करोगे और कोई डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को फोकस करोगे, ठीक है। वन आई को क्लोज करके डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को फोकस करके इमेज को ऐसे अप एंड डाउन करके देखोगे, ठीक है, अप एंड डाउन एंड राइट एंड लेफ्ट। अगर अप कर रहे हो तो इमेज अप हो रहा है, डाउन कर रहे हो तो डाउन हो रहा है। इट मीन्स मोमेंट इज विथ द मोमेंट। विथ द मोमेंट मीन्स प्लस और माइनस लेंसेस में विद द मोमेंट होता है, ठीक है। और जो माइनस लेंसेस मतलब कॉन्केव लेंस। अगर कॉन्केव लेंस है तो अप करोगे तो अप जाएगा, डाउन करोगे तो डाउन, राइट एंड लेफ्ट, तो इमेज ऐसे ही मूव करेगा, ठीक है। तो और इसको ऐसे ऐसे ये इसका मतलब किसी भी डायरेक्शन में ऐसा ऐसा करोगे तो स्फेरिकल लेंस है तो सभी डायरेक्शन में इमेज तुम्हारा नॉर्मल दिखेगा, ठीक है। इसको अगर रोटेट ऐसा कर दे रहे हो किसी भी मेरिडियन में तो इसमें डिस्टॉर्शन ऑफ इमेज नहीं होगा, ठीक है। डिस्टॉर्शन ऑफ इमेज किस में होगा? सिलेंड्रिकल ग्लासेस में। उसका एक पर्टिकुलर जो एक्सिस है, एक्सिस के 90 डिग्री में पावर रहेगा, तो उसमें अगर जिस एक्सिस में है वहां से अगर उसको रोटेट कर दोगे जो इमेज है नॉर्मल तुमको नहीं दिखेगा, वो डिस्टॉर्टेड इमेज दिखेगा, ठीक है। और अगर विथ अपोजिट हो रहा है, अप कर रहे हो, इसको अप कर रहे हो तो इमेज नीचे जा रहा है, ठीक है। और इसको नीचे कर रहे हो तो इमेज ऊपर जा रहा है, राइट कर रहे हो तो लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट कर रहे हो तो राइट जा रहा है। इसका मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस हुआ। और कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है? इमेज का मैग्निफिकेशन होता है। मतलब जो नॉर्मल साइज है, जितना बड़ा साइज है उससे आपको साइज इंक्रीज मिलेगा। और ये जो क्या बोलते हैं कॉन्केव लेंस में मिनिफिकेशन होगा, इमेज इज स्मॉलर देन द रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें भी अगर स्फेरिकल है तो किसी भी डायरेक्शंस में आप मूवमेंट करो इमेज डिस्टॉर्टेड इमेज नहीं मिलेगा। पर अगर ये माइनस सिलेंडर है तो माइनस सिलेंडर है तो तुम जैसे ही इसको रोटेट कर दोगे एक्सिस से ऐसा इधर या उधर कर दोगे
तो किसी पर्टिकुलर मेरिडियन में इमेज नॉर्मल दिखेगा, पर उस मेरिडियन को छोड़ के इन अदर डायरेक्शंस इमेज इसमें भी डिस्टॉर्टेड मिलेगी। तो अगर सिलेंडर है या स्फेरिकल है, ये पता करने के लिए क्या करोगे, रोटेट करोगे, लेंस को रोटेट करोगे, और इमेज अगर मैग्निफिकेशन हो रहा है तो प्लस लेंसेस, एंड पावर इज प्रेजेंट इन ऑल द 360 degree, all meridians. Image is normal in all meridian, there is no distortion. But in case of cylindrical lens, there is, if the axis is changed, then the distortion of image is occur. ठीक है, अब समझ में आ गया। आइडेंटिटी अभी यहाँ है नहीं, वो ओपीडी में दिखा देंगे, ठीक है। बाद में मैं यहाँ पर वो रखवाऊंगी कर रही, क्योंकि सबको फिर क्लास में लेके जाना पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पर एक स्नेलेंस चार्ट भी लगवाना है। अभी तो मैं इमरजेंसी के लिए लेके आई, ये तो पूरा रेडी नहीं है कैमरा करके, ठीक है। तो ये स्नेलेंस चार्ट तुम लोग को बताने के लिए, ये नियर विजन, कलर विजन चार्ट भी है, ओपीडी में तुम लोग को देख सकते हो, ठीक है। तो स्टेनोपिक स्लिट हो गया, पिन होल हो गया, और इसको देखा हुआ, ये क्या है, मेडॉक्स रॉड। इसको इससे क्या करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ मेडॉक्स रॉड? आइसोट्रोपिया एंड इसोट्रोपिया। व्हाट इज आइसोट्रोपिया एंड इसोट्रोपिया? इसमें आइसोट्रोपिया भी होता है और फोरिया भी होता है। फोरिया मतलब क्या? आइसोट्रोपिया बोला, और आइसोफोरिया भी होता है, इसोफोरिया, इसोट्रोपिया। तो उसका क्या मतलब है? मतलब उसका स्क्विंट है पर विजिबल नहीं है, ठीक है, ट्रोपिया मीन्स। और फोरिया तो आपको मतलब क्लियर कट दिख रहा है कि वन आई इज डेविएटेड, अदर वन आई को अगर फिक्स कर रहे हैं तो अदर आई इज डेविएट। तो अगर ये टेम्पोरली डेविएट हो रहा है, इट मीन्स डाइवर्जेंट स्क्विंट, और अगर अदर आई को फिक्स कर रहे हैं और वो नेजली रोटेट हो रहा है, इट मीन्स कन्वर्जेंट स्क्विंट, ठीक है। पर इसको हम लेटेंट स्क्विंट मतलब छिपा हुआ, ठीक है, स्क्विंट है पर ऑब्वियस नहीं है, तो उसको हम असेस करने के लिए ये मेडॉक्स रॉड का यूज करते हैं। इसमें मल्टीपल सिलेंडर एक रो में रहता है, तो इसको डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखोगे ऐसे करके, तो अगर तुमको स्क्विंट नहीं है तो ये जो लाइन है, ये पैरेलल जो लाइन दिख रहा है, तो लाइट तुमको एक सेंटर में स्ट्रिक लाइट दिखेगी, एक एक इमेज करके। पर अगर तुमको इसोट्रोपिया है, ठीक है, तो वो जो नॉर्मल लाइन सेंटर में ना दिख के नेजली दिखेगा, ठीक है। और इसोट्रोपिया है तो टेम्पोरली। अब इसको तुम इस तरह से ऐसे करके देखोगे तो इसमें हाइपरफोरिया एंड हाइपोफोरिया। हाइपरफोरिया रहेगा मतलब सेंटर पे लाइन नहीं दिखेगा, वो अपवर्ड दिखेगा और नीचे दिखेगा। तो इसको हम किसको असेस करने के लिए करते हैं? लेटेंट स्क्विंट, ठीक है। तो तुम लोग को स्टेनोप्लिक स्लिट बता दिया, मेडॉक्स रॉड बता दिया, एक मेडॉक्स विंग होता है, सुना है नाम मेडॉक्स विंग? मेडॉक्स विंग, हाँ, तो मेडॉक्स विंग है, उससे भी वो करते हैं। और एक साइनेप्टोफोर होता है मशीन,